السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتے ہیں عزیزی السلام علیکم ناظرین اور میرے انتہائی معزز مہمان۔ السلام علیکم جی۔ اچھا جی، میں یہ شروع میں ایک محلے داری کی پرابلم ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو بڑی کریٹ ہو چکی ہے، پہلے یہ نہیں تھی ہوتی۔ محلے داری میں اب اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے یا تو ایک دوسرے کو بالکل ہی نہیں بلاتے، یا پھر اگر ایسا ہمارے جیسے محلوں میں ماحول ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے گلتے ہیں یا محلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کی محلے میں دوسرے کسی محلے دار سے لڑائی جھگڑا ہے نا جی، تو کو محلے والے یہ کوشش نہیں کرتے کہ بھائی ان کا یہ جو غصہ گرمی ہے اس کو مٹا دیا جائے، ختم کرایا جائے، صلح کرا دی جائے، صلح کرائی جائے کہ بھائی آپ کیوں نہیں اس سے ملتے۔ شاباش، تاکہ محلے والوں کے ہاتھ جو ایک شغل یا تفریح کا موقع لگا ہوا ہے وہ ہاتھ سے گوا دے۔ بہت اچھے، یعنی شغل میں اتنا بڑا گناہ ہم کما رہے ہیں۔ شغل ہی اگر چاہیے تو آپ محلے کے ہر بندے کو ایک لوڈو خرید دیں، وہ کار اپنی شغل میں لگا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تو پیار محبت کے ساتھ رہے۔ احساس ختم ہو گیا اصل میں گوری صاحب۔ فیملی ایشوز جو ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی شوہر یا بیوی میں کوئی ناچاکی ہے یا کوئی معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے، اس کو بھی چسکا لینے کا ایشو بنا دیتے ہیں ہم گفتگو میں پورے محلے میں۔ بالکل، ویسے اب تو چسکا بھی ختم ہو گیا ہوا ہے، اب میرا خیال ہے بالکل ہی ہم اپنے اپنے کام کاج میں روٹی روزی میں اتنا رجھ گئے ہوئے ہیں، اتنا انوالو ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ارد گرد کے لوگوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بالکل ایک دوسرے کی طرف گوری صاحب دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا میں تو چاہیے۔ دیکھتا رہتا ہوں، میری طرف کم دیکھتے ہیں لوگ، پورے محلے کو دیکھتا ہوں۔ تمہاری طرف بھی دیکھتے ہیں، تمہیں احساس نہیں ہو، تم اصل میں چاہتے ہو کہ جو مجھے دیکھے وہ ٹکٹ لے کے دیکھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یار انوالو رہنا چاہیے۔ کسی کی اگر آپ کوئی لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں اس کو فوراً حل کریں، کسی کی اداسی دیکھتے ہیں اس کو بھی فوراً کو تسلی دیں، اس کو پوچھے بھائی جی خیر ہے، آج کل منہ لٹکایا جے خیر ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اداس بندہ جا کے بیچارہ مسکین چھپڑ کے کنارے بیٹھ کے تو چھپڑ میں روڑے مارتا رہے کلے۔ اس طرح کا یہ بدہ بیچارہ اداسی دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوا چھپڑ کے کنڈے روڑے مار رہا تھا نا، تو تھوڑی دیر بعد ایک ڈڈو باہر آیا، وہ آگے کہتا ہو کادلی روڑے مارنے ہیں کو حیا کر، کہتا یار اداس ہے بس اپنی اداسی دور کر لو۔ کہتا بیٹے مجھ تمہاری اداسی کا میرے چھوٹے منڈے کا سیر پاڑ گیا، ادھر اندر آج پڑھنا تمہاری اداسی دور کر۔ وہ چھوٹے منڈے کی شکایت کر رہا ہے، چھوٹا منڈا کتنا ہنس رہا ہے؟ یہ اس کا بڑا منڈا ہے، اچھا یہ بڑا جو گڑیں گڑیں کرتا ہے، چھوٹا منڈا کڑنگ کڑنگ کرتا ہے۔ یہ ڈڈووں کو معاف کریں اور ذرا خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی کیا خبر ہے جی آپ کے پاس؟ خبر یہ ہے کہ جی اسی ڈڈو نے FIR درج کروا دی۔ ہے کو یہ بندہ سیریس اینکر؟ امان سے افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ چینل کے پیسے خراب کرتا ہے۔ خبر سنائیں گے اتنا غلط لگتا ہے کہ آپ ماں کی دال کے خرید کے لائے تو کار آ کے لفافہ کھولے تو بیچ میں سے مسروں کی نکلے۔ یار انٹیلیجنٹ دانشور تم ادھر پڑھتی ہوئے یار تو کیا مضبوط بات ہو، یہ کو باقی حضر ہونے والا ہے۔ عزیزی بھائی کس دن جگہ چینج کر کے دیکھ لو۔ خبر کی طرف آئے۔ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم نو کارکنوں سے تجاویز طلب، پنجاب میں 5 رکنی کمیٹی قائم، راجہ پرویز اشرف بھی کمیٹی میں شامل۔ وہی ڈڈو کی FIR ہی ہو گئی نا۔ یار میں مذاق نہ کرو، سیریس لو خبر کو۔ چلیں جی آپ سیریس لے لیں۔ وہ 5 رکنی پنجاب میں کمیٹی بن گئی ہے، تم کہتے ہو کہ پنجاب سے پیپل پارٹی ختم ہو گئی ہے، 5 بندے تو یہی نکل آئے، ایک بندے نے اور آنا ہے تو ٹانگا ڈور پہنے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹانگا پرے آئے پپلیاں نال ہو، ٹانگا پرے آئے پپلیاں نال، ٹانگا پرے آئے۔ ایک بندہ ان کے ساتھ اور آنا ہے اور انہوں نے منگن ڈور پہنے۔ اترا بھائی ٹانگے سے میٹرو میں بیٹھ۔ یہ ویسے جو خبر ہے نا اس میں 2 3 4 5 میسج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی بڑی فعال ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ انہوں نے تجاویز مانگ لی ہے، اس لیے اس میں بہتری آئے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں۔ تو
तो तजवीज तो मेरी तरफ से यही है कि बंदे चेंज कर लो जो बंदे बताने देते। तुमने इस बात पे गौर नहीं किया कि कारकुनों से तजावीज मांगी गई हैं, तो कहां से आएंगी तजावीज? यार चलो मैं कारकुन तजवीज दे देता हूँ कि आप लोग पहले उन लोगों को तो साइड पे करो जिसकी वजह से पीपल पार्टी को तदगन पहुंचा है। क्या पहुंचे? तदगन क्या पहुंचा है? कदगन का कजन है। यार कदगन ही होगा, चलो समझ आ गई है ना तुम्हें? वो सारे बंदे तदगन पहुंचाने वाले बेची हैं तो कहते हैं पीपल पार्टी को फाल करे। क्या हमें भी बताए क्या पहुंचा जी बाबूजी? तदगन तदगन तो भाई क्या है ये तदगन? यार तुम्हारे लिए चलो गुलकंद। यार मेरे कहने का मतलब है कि राजा परवेज अशरफ साहब वर्गे बंदे जिनका स्कैंडल रेंटल पावर प्लांट मशहूर मरूफ हुआ था और जिसकी वजह से पीपल पार्टी की एंडी बदनामी हुई थी, वो तो अभी फिर कमेटी के अंदर ही है। इनका तो उस बंदे वाला साहब है ना जो बेचारा डॉक्टर के पास जाके कहता कि डॉक्टर साहब मैं अपने जिस्म पे जहां भी उंगली लगाता हूँ बहुत दर्द होती है। डॉक्टर ने सारे जिस्म के एक्सरे खिंचवाए, उसने कहा यार समझ नहीं आ रही क्यों दर्द होती है तुम्हें? कहता जी देख ले। और डॉक्टर ने चेक किया तो उसकी उंगली पे ही साट बजी। पीपल पार्टी को भी चाहिए अपनी उंगली ठीक कराएं जिसकी वजह से सारे जिस्म में दर्द हो रहे। जी अगली खबर है, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत ना घबराए, 24 अप्रैल को धरना नहीं होगा। बहुत अच्छे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तसल्ली दी है कि घबराओ ना, 24 अप्रैल को नहीं धरना होगा, जलसा होगा उनका। और जलसा चूंकि फिर होते होते तो 12 बज जाएंगे, अगे फिर 25 अप्रैल शुरू हो जाए, फिर 25 अप्रैल को धरना शुरू करेंगे। 24 को नहीं वो करते। देखो ये ना कैसे तेज हैं ये तरीके इंसाफ वाले भी, किस तरह फंसा रहे हैं हुकूमत को, तरह तरह के तरीके निकाल रहे हैं। वो जिस तरह के सैनमे वाला कहता है ना कि भाई जी जेड़ा मर्जी आ जाए फिल्म देखने के लिए एंट्री मुफ्त है, बड़ा सारा उसने पोस्टर लगा दिया, लोग भागम भाग के यार मुफ्त एंट्री है चलो चल के फिल्म देखे। जब हाउस पैक हो गया फिल्म देख ली लोगों ने तो वो बंदा गेट पे खड़ा हो गया, कहता जी एंट्री मुफ्त सी, बाहर निकलने वास्ते 100 दियो। सो कुरैशी साहब ने भी मेरा ख्याल है बंदे जलसा करके साथ लेने हैं, उसके बाद धरना शुरू हो जाए। वैसे मैं धरने के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा हो रहा है ये अपोजिशन वालों ने भी जरा हुकूमत की जो बातें खींच के रखी हुई है, फिर इस तरह जो भी इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी लेक्चर में जाकर महल्ले में दूंगा, चूंकि अभी टाइम थोड़ा। जी अगली खबर क्या है जी? जी खबर ये है, शेख रशीद ने कहा है कि हर पार्टी में से मुस्तफा कमाल निकल सकता है। चूंकि शेख रशीद साहब खुद 6-7 पार्टियों से मुस्तफा कमाल होकर निकले, ये उन्हीं का कमाल है। इन्हीं का कमाल है कि जहां मर्जी मुस्तफा कमाल बन के निकला। मगर इस दफा शेख साहब की बदकिस्मती है कि ये मुस्तफा कमाल बन के निकले हैं मगर कोई कमाल दिखा नहीं सके। अब हर टीवी पे बैठ के कमाल सुना रहे हैं। रजी साहब असली मुस्तफा कमाल तो कभी रो भी लेते हैं, लेकिन शेख साहब का कमाल है कि ये हंसते ही रहते हैं। हाँ जी इन्होंने एक प्रोग्राम में भी कहा था ना कि कम ऑन यार मैं रोता होता नहीं हूँ, आई एम अ मैन। उस वक्त मुझे दुख भी हुआ था, मैं शेख साहब को कहना चाहता था कि शेख साहब ही आपका फलसफा को इतना अच्छा नहीं है। मर्द जो होता है अगर वो इंसान भी हो तो वो रोता ही जरूर है। वाह जी वाह, लाख रुपए की बात की है। यार तुम मुझे 10,000 ही दे दो, 90,000 की को दुकान डाल लो। खालबड़े की दुकान पाला, कपड़े की ना डाल लेना दुकान कहीं, बाजू तुम्हारे छोटे हैं, गज गज की जगह आधा गज ही दोगे। जी अगली खबर है, हिंदुस्तानी दौरे पर आई बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन के कपड़े सीने वाली मुंबई की कच्ची आबादी की दर्जन शहजादी को जानती तक नहीं। कमाल बात है, उसे पता तक नहीं था कि वो शहजादी के कपड़े सी रही है। इस कुड़ी ਨੂੰ मैं कहती रही हाँ पुत्र इंडिया सैर करन चलिए खावन दे नाल ते 4 फराक वध लेके जा।
ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਫਰਾਕ ਸਵਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਡੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੰਗਾ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਡੰਕਾ ਫਿਲਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਲੇਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਮਲਕਾ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਟਾਂ ਤੇ ਉੱਡੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਰਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਪੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਲਪੂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਸਵਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਡੀਮੇਡ 2 ਸੂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਵਾਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਸਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਉੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਲਕਾ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੁਰਖਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, हाँ जी। यार मैं नायरीन से मुखातब हूँ, हायरीन से मुखातब नहीं हूँ। एक दानिशवर को बिला वजह तंग कर रहे। लेकिन ये दानिशवर रेडी पे कहाँ बैठ गया जाके? यार मैंने ये शटैल मारा हुआ और कोई रेडी पे दुआरे नहीं लगे हुए। दवाने नहीं, लेकिन दवाना तो लगा हुआ है ना। यार वैसे हद हो गई है, तुमने एक अच्छे बड़े दानिशवर को दुआना बना दिया। नायरीन गुस्सा ना कीजिएगा, आज मैं अपने प्यारे नायरीन के लिए और अपने मोहल्लेदार दानिशवरों के लिए पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के मैदानों से खेलों की पतली हालत इकट्ठी करके लाया। वाह, बल्कि मुझसे नहीं थी इकट्ठी हो रही, फिर मैंने खुर्च खुर्च के इकट्ठी की। चूंकि हुकूमत के प्यारों ने इस पर बलडोजर फेर दिया। क्या पतली हालत है, ऑफ बीट के साथ आपको पेश कर रहा हूं। वाह जी वाह। अपना अपना साड़ा मीडिया पे आके एक दूजे को रज लताड़ा, गोया क्रिकेट बोर्ड बनाया पूरा एक अखाड़ा। लेकिन होना फेर नहीं कुछ ये है नूरा कुश्ती, सबने ठंडे हो जाना है करके गुल गपाड़ा। यही क्रिकेट बोर्ड यही अमला है अपनी किस्मत, सियासत को है खेल बनाया खेलों में है सियासत। ऐसा हाल नहीं है माड़ा, बाकी खेलों का भी सियासत ने है किया कबाड़ा। कौमी खेल था हॉकी जिसका हाल बुरा है सबसे, अब तो ये भी याद नहीं कि हार रहे हैं कब से। शक्लों फुकरे लगते हैं ये माने या ना माने, सुक्के सड़े प्ले
अपनी टांगे, मैच के जो पैसे मिलते हैं बतलाते शर्माए, नाश्ता भी बेचारे अपने घर से लेकर आए। मुझको तो ये शक है इन्होंने पहनी है जो निकर, जितनी खुली लंबी सी है लंडे की है निकर। फंड न जाने किसको इनके खा जाने की आदत, सियासत को है खेल बनाया खेलों में है सियासत। गीत बहुत लंबा है बस सब खाली मुखड़ा सुन लो, जो अपने पहलवान बेचारे उनका दुखड़ा सुन लो। सारा साल प्रैक्टिस में थे वो बेचारे रह गए, खाएं जो खोराके वो सब अपनी जेब से सह गए। दंगल से जो वाकिफ ना थे जहाज में चढ़ के बह गए, जो असली पहलवान थे वो लंगोट कसे ही रह गए। फिर रोते हैं इंडिया से हम दंगल हार गए हैं, खेल भी तो सारे इनके रिश्तेदार गए हैं। हार के कैसे ना आए जो करते हैं ये हरकत, सियासत को है खेल बनाया खेलों में है सियासत। जाने किसको काम में रहती है किस्मत की मारी, सुना है एक फुटबॉल की भी है खुफिया टीम हमारी। खुफिया इस खातिर के आज तक देखी सुनी नहीं जी, लेकिन फंड्स बताते हैं कि है वो यही कहीं जी। कागजों में वो टीम है पूरी, मैच भी खेल चुकी है, खातों में तो जर्मनी के हम पल्ला जीत रही है। कहाँ गए स्क्वैश स्नूकर मुक गए दौर सुनहरे, अब जिस खेल को देखो उस पे जोंकों के हैं पैरे। ना थे एहसास किसी को ना ही कोई नदामत, सियासत को है खेल बनाया खेलों में है सियासत। जितने जनवन लोग थे यूं चुन चुन के बाहर निकाले, जैसे बोर्ड के कमरों में ये लटके हुए थे जाले। जिसकी जितनी पहुंच थी उसकी लग गई उतनी मौजें, सीट बमुश्किल एक नहीं थी भर्ती कर ली फौजें। कानों से धुएं कट देती है इनकी शाखर्ची, मेरिट को सादा कुलिया है पर्ची पर्ची पर्ची। जितनी बड़ी है पर्ची उतना प्लेयर बड़ा है भाई जी, ओहदेदारों ने भी इस पर्ची से जगह बनाई जी। जाने कब तक रहेगी ये पर्ची की अभी नहुसत, सियासत को है खेल बनाया खेलों में है सियासत। अच्छा सरकार, आज हस्बे डाक में पहले लाहौर से एक व्हाट्सएप के जरिए वीडियो मैसेज है, वो जरा सुने क्या क्या है। सनाई जी क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम हस्बे टीम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा अजीज़ी साहब से एक बड़ा बचकाना किस्म का सवाल है, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस मामले में। अजीज़ी साहब, आपको सारी दुनिया अजीज़ी के नाम से जानती है, आप अकेले हैं जो अपने आप को अजीजी कहते हैं। क्या आपका असल नाम अजीजी है कि अजीजी? प्लीज क्लियर कर। यार अजीजी क्या नाम हुआ? भाई जी मेरा नाम अजीजी है, मेरा नाम अजीजी नहीं है, अजीजी है। दोनों एक ही नाम लेते जा रहे हो। चलो तुम बता दीजिए। असल नाम अजीजी है जी, अजीजी। ये है अजीजी। अजीजी अजीजी। भाई भाई ये बताओ जरा फिर, बोलो बोलो जरा। फंस गए हो? बोल दो, तुम तो कुकड़ के शुरू हो गए। मेरे ख्याल लिखने में अजीजी है और बोलने में अजीजी है। बहुत अच्छे, ये है असल बात। अच्छा, ये तुम्हारे नाम में दोनों जे साइलेंट है और खुद तुम एक लड़ने के लिए साइलेंट नहीं होते।
यार मैं इधर घूमके का पाठ कर रहा हूँ। जैसे घर में करते हो वैसे का घर में तो चलो बंदा कामकाज में लगा होता है तो नहीं बोलता, इधर अब बोलना ही तो होता है। और क्या, इधर अब आगे बर्तन रख लूं मांझने के लिए। बड़ा स्टाइल है जो तुम तनकीद का सामना करते हो ना, कमाल है। क्या किस्मत पाई है, घर में बीवी का सामना, यहाँ तनकीद का सामना। अगला खत क्या है? दोनों ने शर्मा शर्मा के अपने नाक पीने कर दिए। बताओ अगला खत क्या है? जी खत है गुजरात से। अबू तराब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी साहब, बाजारों गलियों पर रेडी पर दवाने पड़े हैं। हम रोज सोचते हैं कि आज का प्रोग्राम दवाने पर होगा। दवाना नहीं होता, दुआना होता है। हमारे जो उर्दू स्पीकिंग बहन भाई है उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो दुआना नहीं कह सकते, जिस तरह वो टगा नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, किसी कीमत में नहीं कह सकते। शुक्र अल्लाह का, गौरी बहुत अच्छा कहते हैं वो, शुक्र है। दरअसल अबू तराब साहब, ये जो दुआना है इसका मौसम अभी शुरू ही हुआ है, मैं अभी दुआने के मत्थे नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। बहुत शुक्रिया, आपने याद करा दिया है। आज ही मैं किसी रेडी वाले से मिल के तो 4 व्हील ड्राइव दुआना ले। एक वीडियो मैसेज देखे जरा। जी अजीजी साहब, मैंने ये क्रीम तैयार की है जो 5 मिनट में जुनैद साहब जैसा रंग चिट्टा कर देती है। ये गौरी साहब को देना चाहता हूँ, कब लेकर आऊँ? मैंने ये क्रीम खरीदी है जो रंग जुनैद सलीम जैसा कर देती है। मैं ये गौरी साहब को देना चाहता हूँ, कब लेके आऊँ? मेरी आपसे गुजारिश है भाई जी, और एक कदम तुसी इत्थे क्रीमा पड़ानी है, उतनी देर तक आप खुद तो इसको इस्तेमाल करें ताकि पता तो चले जब आप कैमरे के सामने हैं तो आवाज किसमें से निकल रही है। इससे पहले कि मुझे भी कहना पड़े कि काला तो मवी पर तेरा तो बेड़े कर गया। आप ये खुद इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह हम जुनैद सलीम से ही ले लेंगे ये। जी अगला खत क्लिफ्टन कराची से सबाहत मिर्जा लिखते हैं कि जुनैद और अजीजी साहब में से जो भी पहले बताएगा कि ये क्या लिखा है तो मैं उससे 5000 रुपए इनाम लूंगा। वाह रे वाह, क्या लिखा है? चीन के मुल्क में शीशे, चीन के मुल्क में शीशे के बटन। लेकिन तुमने खत गौर से नहीं सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5000 रुपए दूंगा, उन्होंने कहा जो पहले बताएगा उससे 5000 रुपए लूंगा। जुनैद सलीम ने खूब बताया। मैंने सिर्फ बटन बताया, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। एक मिनट, शोर न मचाया। मौलवी साहब किसी ने पहले बताया। आप ऐसा करें, आप 3500 दे दें, 1500 वो दे दें। उनका तो पूरा करना है 5000। उन्होंने खत लिखा है और क्या इनाम रखा है। नायरीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खबरदार आइंदा मुझे इस तरह का खत सुनाया। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा मोहतरम जनाब फारूक सत्तार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाइन पे हमारे साथ कराची से होंगे मुस्तफा कमाल साहब, और जाहिर है बात होगी सिंध बिलखुसूस कराची के हालात और पनामा लीक्स पे। जुनैद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने मुझे कहा था फोन पे कि हमारी खुशकिस्मती होगी कि मुस्तफा भाई आप हमारे प्रोग्राम में आए। बिल्कुल। तो अभी जब कैमरा स्टार्ट हुआ है तो आपने कहा है कि हमारी खुशकिस्मती है कि फारूक भाई हमारे प्रोग्राम में आए। देखिए, फारूक सत्तार साहब तो खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हैं, आप आए तो नहीं ना? तो भाई आप मुझे कहते मैं भी हाजिर हो जाता, इसमें कौन सी बात? आप कह रहे थे मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भेजे बाहर, तो वो तो देना पड़ता है। फारूक भाई कौन सा चिड़िया में बैठ के आए? फारूक भाई ट्रेन पे आए, अवामी एक्सप्रेस पे आए हैं। भाई इनकी क्या बात करते हैं, इनको तो आप मीडिया वाले अगर बुलाएं तो इनको पैदल भी जाना पड़े तो पहुंच जाते। वैसे भी फारूक भाई की मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर ये तो कब्बे को हाथ दे के उसमें भी बैठ जाती है। हाँ भाई, हंसने वाली बात नहीं है, मेरे सामने ऐसे हुआ है, कब्बे को हाथ दिया। भाई एक मिनट ठहरो, मुझे भी साथ दिए चलो। तो मैंने कहा भाई क्यों ले चलूँ? कहते यार तुमने भी तो खाली जाना है, ले चलो, क्या होगा? तो कभी मैं खाली जाता हूँ, मैं कौन सा बोरियां लाद के जाता हूँ।
तो ये इनकी बात आप छोड़िए, आपने जो ये कहा है कि हमारी खुशकिस्मती है, ये आपको मेरे नाम के साथ कहना चाहिए। चले आपको कह देते हैं, हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ लाइन पे है। और सिर्फ खुशकिस्मती कर दी आपने, साथ बहुत बड़ी भी लगा ली। तो शुक्र करते हैं मुस्तफा भाई आप लाइन पे आ गए। भाई सिर्फ मेरी क्या बात करते हैं, लाइन पे आने वालों की तो पीछे लाइन लगी हुई है। वैसे जुनैद साहब ये साहब कौन है? ये गौरी साहब है। अच्छा, बाबर गौरी? नहीं, ये सलीम गौरी है हमारे। अगर इनकी बाबर गौरी से मिलती है। गौरी तकरीबन एक जैसे होते हैं। हाँ सही कहा भैया आपने। अच्छा मुस्तफा कमाल भाई, ये अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले फारूक सत्तार साहब से बात हो रही थी। मेरे साथ तो अभी बात हुई ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे थे ना इतनी देर से मुस्तफा कमाल भाई लाइन पे हैं, मैं तो मौजूद हूँ, वो लाइन पे हैं। ये कह रहे थे कि अगर इतनी लाइन लंबी लगी हुई है इनके पास, तो ये कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, ये क्यों नहीं लड़ा आप लोगों ने? जुनैद भाई जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, वजन नहीं है, कटकाट नहीं है। ये फारूक भाई मेरे साथ बात कर रहे हैं या अपना हुलिया बता रहे हैं? माफी चाहता हूँ जुनैद भाई, असल में इनको तो जवाब देगा कोई मेरे पार्टी का कोई ऐसा अहदेदार जो इनके लेवल का होगा। मेरा लेवल नहीं है ऐसा कि मैं इनका जवाब दूं। मुस्तफा कमाल साहब आपके सीनियर लीडर रहे हैं भाई, रहे हैं, अब नहीं है। हमने अल्लाह से भी माफी मांग लिया, आवाम से भी, और इस पार्टी से भी माफी मांग ली। देखिए ना, मुझे मुस्तफा भाई की इस बात पर अपना एक जाती शेर याद आ गया। ये भी आप गलत कह रहे हैं भाई, आपका तो कोई जाती शेर ही नहीं है। सारी जिंदगी हमारी आपके साथ गुजरी है, आपने तो जब भी कलम उठाया मुंह के बल गिर गए हैं। और फिर वो क्या कहते हैं जुनैद भाई के हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, जब ये गिर गए हैं तो ऊपर खड़े लोगों को ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि कलम कौन सा है और फारूक भाई कौन सा है। ये मुस्तफा कमाल भाई हमारे भाई हैं, हमने हमेशा इनको भाई समझा है। ये आज कह रहे हैं इनका जाती शेर नहीं है, कल को ये कहेंगे ये पैंट कोट इनका जाती नहीं है, ये बूट इनके जाती नहीं है, वो कुरंगी वाला मेरा घर जो है वो भी कहेंगे ये जाती नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ शेर की बात कर रहा हूँ भाई। ये पैंट कोट तो आपका जाती है, क्योंकि इस साइज का पैंट कोट किसी और का होता नहीं है, बच्चों का होता है, और बच्चे अपने कपड़े किसी को देते नहीं है। अच्छा, ये शेर आपका जाती है? अभी तो मैंने सुनाया भी नहीं, जाती है। चलिए सुनाइए। हाँ, सुने न पहले। जिन पत्थरों को बख्शी थी हमने धड़कने, उन्हें जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। यार भाई अगर ये इनका जाती शेर है तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ भाई। यार खुदा के वास्ते देखे तो सही, ये क्या रहे हैं, ये देखे तो सही। बात करते हैं उनसे, क्यों जी आपका जाती शेर है? जी, जिन पत्थरों को बख्शी थी हमने धड़कने, उन्हें जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। जो यार भाई ये शेर इनका जाती नहीं है, इसमें जो पत्थर है वो इनके जाती है। ये शेर आपका अपना है? कौन सा? में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जो 24 अप्रैल को आप जलसा करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां कैसी जा रही हैं? देखे जुनैद भाई, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसकी अभी 1-1.5 महीना उम्र है, और ये इस 1-1.5 महीने में ही अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी की शक्ल निकल आई है। वरना आप जानते हैं कि इतनी उम्र के बच्चे की शक्ल नहीं निकलती। कोई कह रहा होता है मामू में गया, कोई कह रहा होता है दादी में गया, अब्बा में गया। तो अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी की शक्ल निकल आई है, और मैं समझता हूं कि ये हमारे मुल्क की अल्लाह के फजल से दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। अच्छा, तो हम जो जलसा करने जा रहे हैं वो सब लोगों को मालूम है, और लोग हमें धड़ाधड़ राब्ता कर रहे हैं, और पूरा कराची वहां पे आने के लिए तैयार है। अच्छा, और एक देखे ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की और कराची वालों की खास तौर पे कि 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान तले करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। जी। अभी हम 24 अप्रैल को जो जलसा कर रहे हैं, ये सिर्फ 1 महीने और 1 दिन का फर्क है। वाह। तो इसमें आप यही समझिए कि ये एक नई करारदाद जो है वो कराची वाले अल्लाह के फजल से वो मंजूर करेंगे, और ये इस शक्ल में सामने आएगी पार्टी हमारी कि इसने पाकिस्तान को बचाना है। और ये जो रा के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर हैं कराची में बैठे हुए, इनको अल्लाह के फजल से हमने यहाँ से निकाल भगाना है। देखिए, आई प्रोटेस्ट, ये जो मुस्तफा कमाल भाई ने कहा है कि रा के एजेंट बैठा है, इन्हें कहे कि ये अपने अल्फाज वापस ले ले, या फिर इस फिक्रे को दुरुस्त कर
कर लेगा। मैं माफी चाहता हूँ फारूक भाई, ये मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो राह के एजेंट के आगे एजेंट हैं। मैं जो प्लीज ये ऐसा ना कहे। नहीं, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि राह के एजेंट हैं भाई। जुनेद भाई, इनको आप मेरे सामने लाकर क्यों नहीं बिठाते? ये हमेशा लाइन पर ही क्यों होते हैं? ये आमने सामने गुफ्तगू हो जाए तो अल्ताफ भाई भी जरा खुश हो जाएंगे। देखिए फारूक भाई, आपको मेरे लाइन पे बैठने में एतराज नहीं होना चाहिए। इस तरह तो मैं भी एतराज कर सकता हूँ कि आप प्रोग्राम में क्यों बैठे हुए हैं, तार पे क्यों नहीं बैठे हुए। मैं हैरान हूं कि कराची में तो इतनी जुगते होती भी नहीं, इन्होंने कहां से सीख ली है? कराची में तो कोई ऐसा मोहल्ला भी नहीं जिसका नाम फैसलाबाद हो। मेरा ख्याल है आप कराची में उमर शरीफ भाई से नहीं मिले फिर। मुस्तफा कमाल भाई, इधर उधर की बातों को छोड़िए और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, खुदारा सियासत में इतना आगे मत जाइए। आप पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी पे ये जो एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत लगा रहे हैं। खुदारा आगे मत जाइए, आगे समंदर है। देखिए जरा, आप ये फिर धमकी दे रहे हैं। देखो फारूक भाई, मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये किसी की जागीर नहीं है। हम अपनी इस कम्युनिटी की साख, इसकी इज्जत, इसकी गैरत बहाल करने के लिए निकले हैं और वो इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। ये जो 24 अप्रैल को जलसा हो रहा है, इंशाल्लाह ये साबित कर देगा कि ये जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है ये हमारे साथ है और जो मुहिब वतन लोग हैं वो हमारे साथ हैं। सिर्फ वो लोग हमारे साथ नहीं मिलेंगे जो वाकई राह के एजेंट हैं। फिर इल्जाम लगा रहे हैं। मुस्तफा भाई, आप माफ क्यों नहीं आ रहे? जुनैद भाई, आप इनको गोद में उठा के थोड़ी देर चुप करवाइए, मैं अभी आता हूँ। जुनैद भाई, एक रोने लगे, एक चले गए, हम थोड़ी देर चाय पी लें। डॉक्टर साहब, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। बायोलॉजी का सवाल कीजिएगा, वो इनको नहीं आता होगा। सवाल मेरा ये है कि ये जो पनामा लीक्स पे आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिर्फ एक खानदान की बजाय सबका एहतसाब किया जाए, इससे मुराद क्या है आपकी? क्या मुराद हो सकती है? सीधी बात है कि सबको पकड़ा जाए। जिन जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं, उन सबको पकड़ा जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद भाई। बल्कि मैं तो ये कहने के लिए दोबारा आया हूँ कि उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने इंग्लैंड में बैठ के अपनी ऑफशोर कंपनियों को ऑनशोर बना रखा है। और ये वो लोग हैं जुनैद भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से भत्ता, फंड, हर चीज, ब्लैक मनी जो है वो वहां पे पहुंचाई है। और इन ऑनशोर कंपनियों का वाहिद मकसद भत्ते की तरसील को एनश्योर करना है। देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि इन पे हाथ पड़े, इनको हाथ डाला जाए। अगर इन लोगों को आप हाथ नहीं डालेंगे तो ये पाकिस्तान की मजलूम आवाम जो है, कराची के जो मजलूम लोग हैं, ये बेचारे सारी जिंदगी भत्ता देते रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं। क्यों डॉक्टर साहब? कहते रहे टीवी चल रहा है, हम सुन रहे हैं। ये बेचारे तो जब टीवी चल रहा होता है, ये सिर्फ इनको तो अब सुनने की आदत पड़ गई, क्योंकि इन्होंने 2.5 घंटे बैठ के टीवी पे ही तकरीर सुनी हुई है। इनको तो अब आदत पड़ गई हुई है। बल्कि ये शुक्र कीजिए कि ये मुझे टीवी पे सुन के वाह वाह नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने जब भी टीवी पे किसी को तकरीर करते हुए सुना है तो वाह वाह करने के लिए ही सुना है। आज ये बातें कर रहे हैं, यकीन जानिए सबसे ऊंची वाह इनकी हुआ करती थी। फारूक भाई, वाह तो आपकी ही सबसे ऊंची होती थी। आपके जाती कद की वजह से आपकी वाह नीचे रह जाती। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।